Hello everyone, welcome to Sadhu Biology. I am Noor Sabah, and in this lecture of molecular basis of inheritance, we will continue our discussion in a neat oriented way. If you have watched part 1 and 2, this lecture will help you to connect the concept even better. So keep your NCERT books and notebooks open and let's begin today's lecture. DNA. The full form of DNA is deoxyribonucleotide. It is a long polymer. Hello everyone, welcome to Sadhu Biology. I am Noor Sabah, and in this lecture of molecular basis of inheritance, we will continue our discussion in a neat oriented way. If you have watched part 1 and 2, this lecture will help you to connect the concept even better. So keep your NCERT books and notebooks open and let's begin today's lecture. DNA. The full form of DNA is deoxyribonucleic acid. It is a long chain of polymer formed of deoxyribonucleotide. The length of DNA is defined as the number of base pair or as the number of nucleotide. The number of nucleotides. So we are discussing here some important genome sizes. Such as bacteriophage, Phi 174 has 5386 nucleotides. Bacteriophage lambda has 48502 base pair. A pair of nucleotide is called E. coli, the bacteria Escherichia coli has 4.6 into 10 to the power 6 base pairs, and human haploid DNA has 3.3 into 10 to the power 9 base pair. A single cell of human DNA has approximately 2 meter DNA. अगर हम ह्यूमन बीइंग की सभी सेल्स के अंदर से डीएनए को निकाल के उसको अनवाइंड कर लें तो ये इतना लंबा हो जाएगा कि ये अर्थ से सन तक कई चक्कर घुमा सकते हैं हम इसको. As we have discussed earlier, DNA is a long chain of nucleotide. A nucleotide contains 3 parts. The first part of the nucleotide is pentose sugar. Pentose sugar. It is a 5 carbon sugar.
as the name suggests, this sugar has 5 carbon. This pentose sugar is of two types, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, जबकि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। ये दोनों ही 5 कार्बन शुगर है। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि डीएनए में जो सेकंड कार्बन होता है उस पर एक ऑक्सीजन एटम कम होता है, इसीलिए यहाँ पर डीऑक्सी वर्ड यूज किया गया है। तो डीएनए के अंदर सेकंड कार्बन पर ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है और आरएनए के अंदर सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप एट सेकंड कार्बन 2' कार्बन। इसी वजह से डीऑक्सीराइबोज शुगर ज्यादा स्टेबल होती है और राइबोज शुगर इज less stable and more reactive, and this is the reason that deoxyribose sugar DNA is the genetic material in most of the organism. Second part of nucleotide is phosphoric acid या फिर phosphate group, and the third part is nitrogenous bases. Nitrogenous bases are of two types. Purines and pyrimidines. प्यूरिन्स जो होते हैं ये सिंगल रिंग प्यूरिन्स डबल रिंग कंपाउंड होते हैं, जबकि पिरिमिडीन सिंगल रिंग कंपाउंड होते। इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। प्यूरिन भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। और पिरिमिडीन्स 3 टाइप्स के होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन ये तीनों जो नाइट्रोजन बेसेस हैं ये डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन होते हैं, जबकि डीएनए के अंदर ओनली थाइमीन प्रेजेंट होता है और आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। नाइट्रोजन बेसेस combine with पेंटोज शुगर। नाइट्रोजन बेसिस जो पेंटोज शुगर है, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होगी, इसके साथ ज्वाइन होते हैं और इसके साथ जुड़ के फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोसाइड। तो ये जो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर है, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जो बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो नाइट्रोजन बेस का न्यूक्लियोसाइड कंबाइन with phosphate group and form nucleoside combine with phosphate group to form nucleotide। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड is known as phosphoryl
ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो डीएनए के 3 पार्ट होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के साथ में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से जुड़ता है और फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप के साथ में जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एंड इट फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अगर शुगर होगी राइबोस तो इस न्यूक्लियोटाइड को हम कहेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, और अगर यहाँ पे शुगर होगी राइबोस तो हम इस न्यूक्लियोटाइड को बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट डीएनए में भी और आरएनए में भी सेम होता है। और नाइट्रोजन बेस एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, डीएनए के अंदर होते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। आरएनए के अंदर होते हैं एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। So if this explanation helped you in any way, please like this video, subscribe to my channel Sadhu Biology, and please tell me in comment which would you like to cover me next in the next video. Thank you so much.